Hello children, welcome back to your maths class with Poonam Bagga. We are studying class 10th maths chapter 6 triangles. We have learnt the Pythagoras theorem and its proof. We have also done some theorems related to it, and then we have done some examples related to these theorems. Today we are going to start exercise 6.5, and in this video we will take up the first 5 questions from it. So let us start with the first question. Here it is. Sides of triangles are given below. Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. So here we have been given the lengths of sides of some triangles, and we have to check whether these sides are forming a right triangle or not. और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड लें आप और लॉन्गेस्ट साइड का आप स्क्वायर करें और ये स्क्वायर इक्वल हो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो ऐसे केस में जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके ऑपोजिट जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री एंगल होगा, और ऐसे में जो ट्रायंगल होगा वो होगा राइट ट्रायंगल. तो अब हम इन क्वेश्चंस में सबसे पहले देखेंगे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि ये स्क्वायर इक्वल है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है या नहीं. अगर इक्वल है और ये रिलेशनशिप होल्ड करती है तब तो ऐसे केस में वो ट्रायंगल होगा राइट ट्रायंगल, और अगर ये रिलेशनशिप होल्ड नहीं करती है तब वो राइट ट्रायंगल नहीं होगा. और एवरी टाइम जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही होगी आपकी हाइपोटेन्यूस अगर वो एक राइट ट्रायंगल है. ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके लेते हैं. द फर्स्ट केस इज़ दिस वन. तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको. तो आप देख सकते हैं 25 centimeters. This is the longest side. So here first find the square of this side. 25 square, it is 625. And now we will find the sum of the squares of the remaining sides. Remaining sides is 7 centimeter, 24 centimeter. इनका स्क्वायर कीजिए, सम कीजिए. 7 square is 49 plus 24 square is 576. Add the two, you will get it equal to 625. And now both of them are equal. So here 25 square, this is equal to 7 square plus 24 square. So this implies these sides form a right triangle you can also mention by the converse of Pythagoras theorem. You can also mention it. And now you need to write the length of the hypotenuse. It is the longest side. Here length of hypotenuse, it is equal to 25 centimeters. The longest side, जो सबसे लंबी साइड होती है वही हाइपोटेन्यूस होता है. Then we take this one again. First identify the longest side. So 8 square, it is equal to 64. And now 3 square plus 6 square, remaining two sides के square का sum हम लेंगे. तो 3 square is 9 and 6 square is 36. If you add you will get it equal to 45. और अब ये दोनों values equal नहीं है. So here 8 square, this is not equal to 3 square plus 6 square. So these sides do not form a right triangle. क्योंकि ये relationship hold नहीं कर रही है sides के बीच में, तो ये sides जो हैं right triangle form नहीं कर रही हैं. So this implies these sides do not form a right triangle. और क्योंकि अब right triangle बन ही नहीं रहा है तो hypotenuse की तो बात ही नहीं बनती यहाँ पर, तो वो length भी हम नहीं लिखेंगे. ठीक है, next one. Here again identify the longest side. It is 100 centimeters. So 100 square, this will be 10,000. Number of zeros double हो जाते हैं. Then next 50 square plus 80 square.
50 square it will be 2500 and 80 square 6400. Add the two double zeros, 5 and 4 9 and 8 8900. दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो फिर से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं है. सिंस 100 square is not equal to 50 square plus 80 square, these sides do not form a right triangle. और इसीलिए यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूस का केस नहीं बनता, हम नहीं लिखेंगे. देन नेक्स्ट वन इज दिस वन. अगेन फर्स्ट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट साइड. It is 13 centimeters. So 13 square it is equal to 169. Then the sum of the squares of the remaining sides. 12 square plus 5 square. 12 square is 144 and 5 square is 25. Add the two, you will get it equal to 169. And so the two values, these are equal. And so this implies that 13 square is equal to 12 square plus 5 square. This implies by the converse of Pythagoras theorem, these sides form a right triangle. और क्योंकि अब right triangle बन रहा है तो हमें hypotenuse की length भी लिखनी होगी. Make some space. Hence length of hypotenuse, बताइए कौन सी साइड होती है? Yes, the longest side. और इस केस में वो है 13 centimeters. So it will be equal to 13 centimeters. ठीक है. Next we take question 2. PQR is a triangle right angled at P. And M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. ये symbol है perpendicular के लिए. And show that PM square is equal to QM into MR. तो पहले यहाँ पर एक right triangle बनाना होगा PQR. फिगर बनाते हैं तभी हम उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. Let us draw one right triangle. Let this be the triangle. अब आप देखिए right angled at P, तो कुछ भी नाम नहीं देना है. ये जो 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर तो हमें P लिखना है. अब Q और R आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी नंबर दे दीजिए, यहाँ पर नेम दे दीजिए. Q यहाँ दे देते हैं और R यहाँ पर लिख देते हैं. नेक्स्ट व्हाट? M इज़ अ पॉइंट ऑन QR. ये है साइड QR, यहाँ पर M एक पॉइंट है इस तरह से कि PM परपेंडिकुलर है QR की. तो हमें यहाँ एक्चुअली P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है स्ट्रेट इस तरह से. और ये है पॉइंट M और ये परपेंडिकुलर है. ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो गए. परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और दोनों तरफ के एंगल्स आपके 90 डिग्री के होंगे. नाउ वी हैव टू शो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. अब आप देखिए हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कौन से क्वेश्चंस में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और कौन से क्वेश्चंस में हम सिमिलैरिटी क्राइटेरियन अप्लाई करेंगे. देखिए आप PM स्क्वायर, तो स्क्वायर जहाँ पर आ रहा है तो वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी सोच सकते हैं और हम सिमिलर ट्रायंगल्स का केस भी सोच सकते हैं. अब आप यहाँ राइट साइड में देखिए, यहाँ पर साइड्स के स्क्वायर नहीं हो रहे हैं. तो ऐसे केस में ये एक्चुअली दो रेशियोज़ हैं जो आपस में इक्वल बताए गए हैं. आप इसको लिख सकते हैं PM अपॉन QM इक्वल टू MR अपॉन PM. तो एक्चुअली ये रिज़ल्ट और कुछ नहीं बल्कि दो रेशियोज़ हैं जो इक्वल हैं और ऐसे केस में बात बनती है सिमिलर ट्रायंगल से. तो जब भी आप देखें कि एक तरफ स्क्वायर है और दूसरी तरफ स्क्वायर नहीं है तो आप समझ जाइए कि ये केस है सिमिलर ट्रायंगल्स का. तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि सिमिलर ट्रायंगल्स का केस है यहाँ पर. अब हमें वो ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं जिन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है. तो आप देखिए PM स्क्वायर मतलब PM दो बार आ रहा है तो हमें ऐसे दो ट्रायंगल्स देने हैं जिनमें PM कॉमन साइड हो, PM दोनों ही ट्रायंगल्स की साइड हो. तो अब आप देखिए ये साइड है PM, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट और ये सेकंड, दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकंड वन.
इन दोनों ट्रायंगल्स की ये साइड है PM। तो एक्चुअली हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। जैसे ही ये सिमिलर हो जाएंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होंगे और वहाँ से हमें ये रेशोज़ इक्वल मिलेंगे और यहाँ से हमें ये रिज़ल्ट इक्वल मिल जाएगा। समझ में आ गई कि कैसे फॉलो अप करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करें, तो आप याद कीजिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर राइट एंगल के वर्टेक्स से हम उसके ऑपोजिट जो हाइपोटेन्यूस है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो आपस में भी सिमिलर होते हैं और ये ट्रायंगल्स होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, तो वो थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं और उससे ये दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं। सो लेट अस नाउ डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आप हमेशा इस तरह के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज गिवन, व्हाट यू हैव टू प्रूव। सो वी राइट हियर गिवन PQR is a triangle right angled at P and PM is perpendicular to QR। इसको लिखने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन से ही लेना है हमें। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, इट इज़ ऑल्सो क्लियर इन द क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। तो अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। हमारा पर्पस तो समझ में आ ही गया आपको कि PM स्क्वायर हो रहा है, तो हमें दो ट्राइंगल्स ऐसे लेने हैं जिनकी साइड हो PM, और वो है ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये है सेकेंड ट्राइंगल। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो एक तरीका तो यही है हम थ्योरम अप्लाई करें कि अगर राइट ट्राइंगल के राइट एंगल के वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस पर ड्रॉप करें तो हाइपोटेन्यूस के दोनों तरफ के ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। तो पहले हम ये थ्योरम लिखते हैं। यू हैव टू लर्न द थ्योरम। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट यू कैन ऑलवेज राइट द स्टेटमेंट ऑन योर ओन। अगर आप समझ गए हैं ये थ्योरम तो आप अपने वर्ड्स में ईजिली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम the vertex of right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangles formed on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and also to each other। अब आप अगर समझ गए हैं तो आप इन्हें अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। I have written here, this is the theorem and now we will be saying that these two triangles are similar to each other. So here, since we know that if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. This implies that the two triangles are similar. Triangle 1 and triangle 2, these are similar. Now we write them in symbolic form. Triangle 1, its name is triangle PQM. फर्स्ट ट्राइंगल का नेम तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड नेम बड़े ध्यान से लिखना होगा। अब आप देखिए यहाँ पर एंगल M दोनों तरफ 90 डिग्री के हैं, तो M की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे M थर्ड प्लेस पर। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ये एंगल Q इक्वल होता है यहाँ एंगल P से, तो एंगल Q की जगह आएगा आपका P, और फिर ये एंगल P इक्वल होता है एंगल R के। And so in place of angle P we will write angle R, and so triangle PQM is similar to triangle RPM। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होंगे और फिर जो रिजल्ट हमें चाहिए वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर रेशो लेते समय हमें ध्यान रखना है कि PM लेना है दोनों ही केस में। देखिए हमारे रिजल्ट में PM स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए हम जब रेशो लेंगे तो PM को ज़रूर मेंशन करेंगे। देखिए ये है PM यहाँ से और यहाँ है RM, सो हियर वी कैन राइट PM अपॉन RM। दिस विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ से है ये PM और यहाँ से ये है QM, तो पहले इसी ट्राइंगल की साइड लिखेंगे QM अपॉन PM, और अब आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिल जाएगा। सो हियर दिस इम्प्लाइज PM स्क्वेयर इज इक्वल टू QM इंटू RM। देख रहे हैं आप, ये PM इंटू PM हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, और ये हो गया QM इंटू RM, और क्या ये वही रिजल्ट है? देखिए PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, वही तो रिजल्ट है। MR और RM एक ही बात है। सो दिस इम्प्लाइज PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR एंड हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो यहाँ हमने देखा कि ये रिजल्ट लाना है तो PM स्क्वायर हो रहा है, तो ऐसे दो ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई किए जिनकी साइड हो PM। हमने देखा ये फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल हैं, इन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए यहाँ हमने ये थ्योरम अप्लाई की जहाँ पर
परपेंडिकुलर की दोनों तरफ के ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते ही इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल हो गए और फिर हमें ये रिज़ल्ट मिल गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करेंगे जहाँ पर हम ये थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि एक्चुअली हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे एंड देन यू कैन चूज़ वन ऑफ द टू मेथड्स। वी राइट द प्रूफ इन द सेकेंड मेथड ऑल्सो। एक और तरीके से दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। इसके लिए आप देखिए ये एंगल और ये एंगल, इनके सम के बारे में आप क्या कह सकते हैं ज़रा सोचिए। अगर आप ट्राइंगल PQM की बात करें तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा आप सोचिए ज़रा। टिल आई राइट इन ट्राइंगल PQM एंगल Q प्लस एंगल QPM दिस इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ही, हमें पता है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब क्योंकि ये 90 डिग्री है तो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ आप रीज़न दे सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। लेट दिस बी द फर्स्ट इक्वेशन। अब आप इस पर फोकस कीजिए एंगल P पर। हमें पता है एंगल P इट इज़ राइट एंगल्ड एट P, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो अब इस येलो एंगल और इस रेड एंगल, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? इनका सम भी 90 होना चाहिए क्योंकि एंगल P अपने आप में पूरा एंगल 90 डिग्री का है। ये समझ रहे हैं आप? ऑल्सो इन ट्राइंगल PQR, लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन, PQR, इसमें देखिए एंगल P दिस इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल P को हम लिख सकते हैं एंगल QPM प्लस एंगल RPM दिस इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये QPM तो येलो वाला पार्ट हो गया, QPM और RPM ये रेड वाला पार्ट हो गया। दोनों का सम 90 डिग्री होगा क्योंकि ये एंगल P के ही पार्ट्स हैं और एंगल P तो 90 डिग्री हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, राइट एंगल एट P। लेट दिस बी रिजल्ट नंबर 2। ओके, now from 1 and 2 you can see angle QPM, it is common from first and second. what we see, दोनों का ही मेजर 90 डिग्री है, तो एंगल Q प्लस एंगल QPM दिस इज इक्वल टू एंगल QPM प्लस एंगल RPM। ये समझ में आ रहा है? ये भी 90 डिग्री के इक्वल है सम, ये भी सम 90 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों इक्वल होंगे और यहाँ से एंगल QPM विल बी कैंसल्ड बाय एंगल QPM एंड दिस इम्प्लाइज एंगल Q इज इक्वल टू एंगल RPM। ये कौन से एंगल्स हैं? देखिए ये एंगल Q, दिस वन, लेट मी हाईलाइट इट, यस, दिस वन एंगल Q एंड दिस एंगल RPM, ये जो ब्लूइश एंगल्स हैं ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और यही हमने यहाँ पर भी बताया था। देखिए कि एंगल Q दिस इज़ इक्वल टू दिस एंगल। तब हमने रीज़न नहीं बताया था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ आप रीज़न के साथ देख पा रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। हमने क्या किया, ये येलो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, फिर ये येलो और रेड का सम 90 डिग्री होगा। इससे इक्वेट करने पर हमें ये एंगल Q इक्वल मिल रहा है एंगल RPM के। ठीक है, नाउ वी कैन गिव इट वन नंबर, लेट दिस बी रिजल्ट नंबर 3। अब आप चलिए दोनों ट्राइंगल्स पे जिन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है। नाउ इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल RPM, ये दोनों ट्राइंगल्स 1 and 2, इनमें हमें क्या मिल रहा है? ये एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, एंगल Q इक्वल टू एंगल RPM फ्रॉम थर्ड रिजल्ट। ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल गए और हमें क्या पता है, ये M पर जो दोनों तरफ एंगल बन रहे हैं ये 90 डिग्री के हैं। एंगल दिस वन PMQ दिस इज इक्वल टू एंगल PMR, both equal to 90 degree. Why? Since PM
इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। क्वेश्चन में ही दिया गया है ये कि पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ के एंगल्स 90 डिग्री के हो गए और इस तरह से हमें दोनों ट्राइंगल्स में दो सेट ऑफ एंगल्स इक्वल मिल गए, ये फर्स्ट सेट और ये सेकेंड सेट, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। सो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल पी क्यू एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब आप देखिए यहाँ पर Q के लिए हम लिखेंगे P, जहाँ पर Q है उसकी जगह तो आ जाएगा P सेकेंड प्लेस पे, और M की प्लेस पे M आएगा थर्ड प्लेस पे, और अब बच गया R, वो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। तो वही मिल गई नोटेशन हमें, ट्राइंगल PQM इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPM बाय AA सिमिलैरिटी। दो सेट ऑफ एंगल्स हमें इक्वल मिल रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, और ऐसे में इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो आपस में इक्वल होंगे। और इस बार फिर से हम जब रेशो लेंगे तो किस पर फोकस रखना है, साइड PM पर, तो यहाँ से PM और यहाँ से RM, दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से PM है यहाँ से QM, सो QM अपॉन PM, एंड दिस इम्प्लाइज दैट PM स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर this is equal to QM into MR, and hence the result is proved. So we have done this question by two methods. ये आपका first method है एक, this is your first method, जहाँ पर आप एक्चुअली दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। ये तो आप समझ ही गए कि हमें दो ट्राइंगल्स ऐसे लेने हैं जिसमें PM कॉमन साइड हो और उन्हें सिमिलर प्रूव करना है, फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो लेते हुए हम इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को ये फर्स्ट मेथड में सिमिलर प्रूव किया है, और फिर ये है हमारा सेकेंड मेथड जहाँ पर हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर तो प्रूव किया है, पर यहाँ पर डायरेक्टली हमने थ्योरम अप्लाई करके इनको सिमिलर प्रूव किया है। तो अब आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी मेथड ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, समझ में आया है, और फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ना सिर्फ इस क्वेश्चन को बल्कि इस तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टेक हियर क्वेश्चन 3। इन फिगर ABD इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट A। देखिए ABD, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का बताया गया है, राइट एंगल्ड एट A, एंड AC इज़ परपेंडिकुलर टू BD। अब ये परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ यहाँ पर 90 डिग्री एंगल्स बनेंगे। शो दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD एंड दीज रिजल्ट्स। अब फिर से यहाँ पर देखिए एक ही तरफ साइड का स्क्वायर हो रहा है, दूसरी तरफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स का केस अप्लाई होगा। हमें ऐसे ट्राइंगल्स लेने होंगे जिनकी की ये साइड्स हैं, और फिर हम उन्हें सिमिलर प्रूव करेंगे, और फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो लेंगे हम, और वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो पहला लेते हैं AB स्क्वायर, तो इसका मतलब AB साइड दो बार आ रही है, तो ऐसे दो ट्राइंगल्स लेने हैं जिनमें AB कॉमन साइड हो। तो आप देखिए AB, एक तो ये इस ट्राइंगल की साइड है ABC की, AB, और फिर ये कंप्लीट ट्राइंगल ABD इसकी भी साइड है। तो हमें एक ट्राइंगल तो ये लेना है और एक ट्राइंगल ये पूरा बड़ा वाला लेना है। दोनों को सिमिलर करेंगे क्योंकि इनमें दोनों में ही AB साइड है, और फिर जैसे ही हम सिमिलर करेंगे इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो लेंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिज़ल्ट पहला वाला हमें मिल जाएगा, और इसी तरह से हम फॉलो करेंगे बाकी में भी। तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज़ गिवन इन फिगर ABD इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट A एंड AC इज़ परपेंडिकुलर टू BD। क्वेश्चन से ही लेना है। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव दीज थ्री रिजल्ट्स। ओके, नाउ वी विल बी प्रूविंग वन बाय वन। फर्स्ट वी टेक दिस फर्स्ट पार्ट, वी विल बी राइटिंग इट्स प्रूफ। तो देखिए AB स्क्वायर के लिए हम ट्राइंगल लेंगे, एक तो ये ABC, और फिर हम ट्राइंगल लेंगे बड़े वाला। तो इन दोनों को प्रूव करने के लिए सिमिलर हमें दो सेट ऑफ एंगल्स चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो इक्वल हों। तो आप देखिए एंगल B जो है ये कॉमन है इस छोटे ट्राइंगल में भी और इस बड़े ट्राइंगल में भी, ठीक है। एक तो ये येलो वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ये येलो कलर से जो हाईलाइट किया है यहाँ पर, एक तो ये ट्राइंगल लेंगे हम जिसमें की साइड है AB, और फिर हम एक ट्राइंगल लेंगे ये बड़े वाला जो रेड कलर से इंडिकेट हो रहा है, ठीक है, बड़े वाला और ये छोटे वाला। तो दोनों में ही AB साइड है, इसलिए हमने इन ट्राइंगल्स को चूज़ किया है क्योंकि हमारे पास है AB
स्क्वायर। अब कैसे देखेंगे, एंगल बी जो है ये तो कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए, तो इक्वल होगा। और हम क्या देख रहे हैं, येलो ट्राइंगल में ABC में ये एंगल 90 डिग्री का है और बड़े ट्राइंगल में ये एंगल A 90 डिग्री का है। तो दो सेट ऑफ एंगल्स हमें आपस में मिल रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में जो इक्वल हैं, और दोनों ट्राइंगल्स AA रूल से सिमिलर होंगे। नाउ वी नीड टू राइट दिस। इसके लिए पहले इन ट्राइंगल्स का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBA। यहाँ पर हम 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का ध्यान ना भी रखें तो भी चलेगा, क्योंकि अभी हम इन्हें सिमिलर तो नहीं लिख रहे हैं, तो कैसे भी लिख लीजिए दोनों ट्राइंगल्स के नाम। तो पहला हमने ले लिया ABC और दूसरा हो गया DBA। अब इनमें क्या क्या इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल B। देखिए B और B कॉमन एंगल, ये हो गए आपस में इक्वल। इसके बाद इस ट्राइंगल में एंगल ACB ये 90 डिग्री है, दिस वन 90 डिग्री, और फिर उस बड़े ट्राइंगल में एंगल BAD दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, बड़े ट्राइंगल में। समझ में आ रहा है? दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। नाउ राइट द नेक्स्ट नेम विद केयर। B की जगह तो B आएगा, तो B सेंटर में है, B सेंटर में। अब C की जगह आएगा A, तो यहाँ पर C है, यहाँ C थर्ड प्लेस पे है, तो A आएगा थर्ड प्लेस पे। और अब बच गया लेटर D, वो आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। तो B की जगह B और फिर C की जगह A थर्ड प्लेस पे, और बचा हुआ लेटर D आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। These two are similar by AA similarity. I hope it's very much clear. अब क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं और ये रिजल्ट लाना है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल करने होंगे, और हमारा ध्यान होना चाहिए साइड AB पर। तो AB यहाँ से लिया अपॉन यहाँ से मिलेगा आपको DB, या कह लीजिए BD। और अब हमें AB यहाँ से लेना है, देखिए ये AB और यहाँ पर है BC, तो पहले इस ट्राइंगल की साइड और यहाँ से आ जाएगा AB, ठीक है। तो दोनों केस में हमें AB मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर रीज़न लिख लेते हैं, सिंस करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल और इन सेम रेशियो। आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AB इंटू AB, इट विल बी AB स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर वी विल हैव BC इन द राइट साइड एंड BD हियर। और क्या ये वही रिजल्ट है? देखिए बिल्कुल वही रिजल्ट है। दिस इज द रिजल्ट एंड हेंस प्रूव्ड। आई होप इट्स क्लियर हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स जिन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, और फिर हम उनको कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। देन वी हैव सेकेंड पार्ट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, ये प्रूव करना है। अब हमें कौन से ट्राइंगल्स लेने होंगे? ऐसे ट्राइंगल्स लेने होंगे। एक तो ये समझिए, दूसरी तरफ RHS में स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का केस नहीं है, ये केस है सिमिलर ट्राइंगल्स का। अब हमें कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं? यहाँ पर आप देखेंगे AC स्क्वायर, तो ऐसे ट्राइंगल्स लेने हैं दो जिनकी की साइड हो AC, कॉमन साइड हो। तो आप देखिए AC ये तो सेंटर में है, तो इसका मतलब हमें ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल, इनको सिमिलर प्रूव करना है। और ये वही केस है जो अभी क्वेश्चन 2 में हमने सिमिलर प्रूव किया था। या तो आप थ्योरम अप्लाई कीजिए या फिर आप सिमिलर प्रूव कीजिए बाय टेकिंग ईच स्टेप सेपरेटली। तो हम वही करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल B प्लस दिस एंगल, इनका सम क्या होगा? 90 डिग्री। वी राइट हियर इन ट्राइंगल ABC, एंगल B प्लस एंगल BAC, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल ना भी लिखें, क्योंकि हमने यहाँ ट्राइंगल का नाम लिख दिया है, तो समझ में आ रहा है कि हम ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। दिस बी इक्वेशन नंबर 1। देन दिस एंगल, दिस इज ऑफ
मेजर 90 डिग्री, एंगल ए ये 90 डिग्री का है, हमें पता है क्वेश्चन में ही दिया गया है एंगल ए 90 डिग्री का है, तो ये येलो और रेड पार्ट्स इनका सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन में ही हमें ये दिया गया है, देखिए आप यहाँ पर बताया गया है गिवन राइट एंगल्ड एट ए, देख रहे हैं ना आप, तो एंगल ए यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो ये दोनों पार्ट्स का सम 90 डिग्री होगा। ऑल्सो इन ट्राइंगल DBA angle A is equal to 90 degree and angle A is nothing but angle BAC plus angle DAC. This is equal to 90 degree. Let this be result number 2. From 1 and 2 इनको equate कीजिए। From 1 and 2 जब आप ये प्रोसेस 2-3 बार करेंगे तो आप इससे इतने फ्रेंडली हो जाएंगे कि बहुत जल्दी जल्दी डायरेक्टली लिखना शुरू कर देंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 एंगल B प्लस एंगल BAC, दिस इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल DAC, क्योंकि दोनों का सम ही 90 डिग्री है तो दोनों रिजल्ट्स इक्वल हो गए। BAC को कैंसिल कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल DAC, दिस बी द थर्ड रिजल्ट। कौन से एंगल हो गए, ये एंगल B, this angle, this is equal to angle DAC, this one, इस एंगल के ये इक्वल हो गया। आप समझ में आ रही है आपको बात, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से अगर आप फॉलो करें तो आपको ये येलो एंगल इक्वल मिल जाएगा एंगल D के, ये एंगल CAB इक्वल होगा एंगल CDA के। इसी तरह से अगर आप फॉलो करें, पर क्योंकि हमें दो एंगल्स मिल जाए इक्वल वही बहुत है, इसलिए हम थर्ड एंगल के लिए अप्रोच नहीं करेंगे। लेट मी मेक सम स्पेस ऑल्सो। अब हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे जिनमें की कॉमन साइड हो AC। तो नाउ इन ट्राइंगल देखिए ABC एंड ट्राइंगल DBA, not DBA, we should take DCA, not DBA, क्योंकि हमें कंप्लीट ट्राइंगल नहीं लेना है, अब फर्स्ट और सेकंड दोनों छोटे ट्राइंगल्स लेने हैं। तो DCA ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2। इनमें क्या क्या इक्वल है देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे एंगल B इक्वल आ रहा है वहाँ पर एंगल DAC के, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 3, ये देखिए यहाँ से। और फिर आप क्या देख रहे हैं, ये एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो C पर जो दोनों तरफ एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल हैं। सो वी नीड टू राइट इट ऑल्सो, एंगल दिस इज BCA, दिस इज इक्वल टू एंगल DCA, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज AC इज परपेंडिकुलर टू BD, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि AC BD पर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए एंगल BCA विल बी इक्वल टू एंगल DCA, दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब इससे दो सेट ऑफ एंगल्स इक्वल मिल गए। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल। नाउ राइट द नेक्स्ट नेम विथ केयर। देखिए B की जगह हमारा आ रहा है यहाँ पर A, तो जहाँ यहाँ B है सेकेंड प्लेस पर, उसकी जगह सेकेंड प्लेस पर आ जाएगा A। इसके बाद C इक्वल आ रहा है C के, तो C थर्ड प्लेस पे है, C थर्ड प्लेस पे आएगा। अब जो रिमेनिंग लेटर है D वो यहाँ फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC बाय AA सिमिलैरिटी। ये बात क्लियर हो गई। जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर आ गए, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो ले लीजिए और हमारा फोकस रहेगा इस बार साइड AC पर। तो दिस इम्प्लाइज AC, यहाँ से लीजिए AC अपॉन हियर वी हैव DC, दिस इज इक्वल टू यहाँ से AC और यहाँ से BC, तो BC अपॉन AC। पहली साइड हम यहाँ से ले रहे हैं इस ट्राइंगल की और दूसरी साइड इधर से, तो इस तरह से ये रेशो आ जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। यहाँ पर आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशो।
आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। ठीक है, और अब चेक कीजिए क्या ये वही रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। देखिए आप, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो हमने पहले दो ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई किए जिनमें ए सी कॉमन साइड है, ये है 1 और 2। इनको हमने सिमिलर प्रूव किया कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। और फिर सिमिलर प्रूव करने पर साइड्स के रेशो इक्वल हो गए, जिसमें हमने ए सी पर फोकस किया और फिर ये रिजल्ट हमको मिल गया। ठीक है, देन वी टेक द थर्ड पार्ट फ्रॉम द सेम क्वेश्चन, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से राइट साइड में स्क्वायर नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम का केस तो ये नहीं है, ये केस है सिमिलर ट्राइंगल्स का। अब आइडेंटिफाई कीजिए कौन से वो दो ट्राइंगल्स होने चाहिए। तो देखिए आप, ए डी स्क्वायर, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स में ए डी एक कॉमन साइड होनी चाहिए। और ए डी कौन सी साइड है, ये। अब ये इस ट्राइंगल में जो सेकेंड ट्राइंगल है इसकी कॉमन साइड है और बड़े ट्राइंगल की साइड है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन साइड है ए डी। इस ट्राइंगल सेकेंड में भी एक साइड है और बड़े ट्राइंगल की भी। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। कौन से दोनों को, इन ट्राइंगल दिस वन ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी। समझ गए आप, ये छोटा ट्राइंगल और फिर ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, इनको सिमिलर प्रूव करेंगे क्योंकि दोनों में ए डी कॉमन साइड है। क्या क्या इक्वल है बताइए आप, ये एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर और इस बड़े ट्राइंगल में एंगल ए 90 डिग्री है। तो ए सी डी में एंगल ए सी डी दिस इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ये है फर्स्ट सेट ऑफ एंगल्स। इसके बाद आप देखिए ये एंगल डी कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन एंगल। आप देखेंगे कि जब भी एक ट्राइंगल दूसरे बड़े ट्राइंगल के अंदर बना होता है तो आपको एक एंगल कॉमन ज़रूर मिलेगा। देखिए आप, यहाँ पर ये ए सी डी इस बड़े ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है तो एक एंगल कॉमन मिलेगा। फर्स्ट केस जो किया था हमने यहाँ पर, इसमें भी ये ट्राइंगल फर्स्ट वाला बड़े ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है तो एंगल बी हमें कॉमन मिल रहा था यहाँ पर। देखिए आप, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, जब भी जो दो ट्राइंगल्स हमें दिए हों उनमें एक ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के अंदर अगर फिट हो तो हम देख सकते हैं कि एक एंगल हमें कॉमन मिलेगा जो हमारी हेल्प करेगा। लेकिन जब इस तरह का केस हो जहाँ पर एक ट्राइंगल दूसरे के अंदर ना बना हो, देखिए यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, सेकेंड केस जो हम कर रहे थे, ये दोनों आपस में अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल दूसरे के अंदर नहीं बना हुआ है। तो ऐसे केस में कुछ इस तरह से फॉलो करके आप दो सेट ऑफ एंगल्स इक्वल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि कब हमें कैसे फॉलो करना है। जैसे ही हमने देखा कि ये ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के अंदर बना है तो कॉमन एंगल हमें मिल गया और इससे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी डी दिस इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल। देखिए डी और डी, थर्ड प्लेस पे डी आ गया। फिर यहाँ से सी इक्वल है ए के, तो सी की जगह यहाँ पर सेकेंड प्लेस पे ए आ गया। अब बच गया कौन सा लेटर, बड़े ट्राइंगल के केस में बी बच गया तो फर्स्ट प्लेस पे बी आ जाएगा। बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। अब यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होंगे और हमारा ध्यान होगा साइड ए डी पर। तो देखिए आप, ए डी अपॉन यहाँ से बी डी, अब यहाँ से ए डी और यहाँ से सी डी, तो पहले इस ट्राइंगल की साइड और फिर ए डी। सिंस करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangles are in same ratio. Getting it? हर चीज़ बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। This implies, अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डी से ही, ए डी स्क्वायर वी विल गेट, दिस विल बी इक्वल टू, इसको बी डी को भी उधर ले जाइए तो बी डी हो जाएगा इंटू सी डी, और ये वही रिजल्ट है देखिए जो हमें प्रूव करना था। एंड सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। Is it okay? Next we take question 4. ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. यहाँ किसकी बात हो रही है? ABC एक ट्राइंगल है, कैसा है?
आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी जिसकी दो साइड्स लेंथ में इक्वल हों, और ये राइट ट्रायंगल भी है, राइट एंगल्ड एट सी। तो पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, कुछ इस तरह से इसका फिगर बनेगा। अब यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ रही है कि ये एंगल 90 डिग्री है और राइट एंगल एट सी, तो ये पॉइंट सी होना चाहिए। अब ए और बी आप अपनी मन से कहीं भी ले सकते हैं, आप चाहें तो ए इधर लें, बी इधर, या आप ए इधर ले लीजिए, बी इधर, पर सी को तो हमें यहीं लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है राइट एंगल एट सी, तो सी तो 90 डिग्री वाली पोजीशन पे ही रहेगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी दो साइड्स इक्वल हैं। तो कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी? क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो इस 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड लेंथ में, तो ये तो इक्वल नहीं हो सकती है। तो ऑब्वियसली अब जो दो साइड्स इक्वल होंगी वो कौन सी होंगी? यहाँ से AC और यहाँ से BC, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। और फिर अब हमें ये रिज़ल्ट प्रूव करना है। अब आप देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है और राइट साइड में भी स्क्वायर है। ये केस है पाइथागोरस थ्योरम का, जब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो साइड्स मेंशन्ड हैं उन पर स्क्वायर लग रहा है, तो ये बहुत अच्छा आइडेंटिटी मार्क है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर है तो पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करना है हमने, और अगर एक ही तरफ स्क्वायर है तो ये ज़रूर सिमिलर ट्रायंगल्स का केस होगा। ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हैं और इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। अब आप देखिए कैसे फॉलोअप करना चाहिए, पहले हम लिख लेते हैं व्हाट इज़ गिवन, व्हाट हैज़ टू बी प्रूव्ड। हियर वी हैव रिटन ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, ये दिया गया है, ये हमको प्रूव करना है, ये इसका रिलेटेड फिगर है। ठीक, नाउ वी राइट द प्रूफ। सिंस triangle ABC is an isosceles triangle, we have AC equal to BC. Since hypotenuse is the longest side, it can't be equal. Now we have to prove this result, and to prove this we will be applying the Pythagoras theorem in this given figure. ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ट्रायंगल ABC is a right triangle with angle C equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, we can write the square of hypotenuse equal to the sum of the squares of the remaining two sides. Hypotenuse कौन सी साइड हो गई? 90 डिग्री के ऑपोजिट AB square, this will be equal to AC square plus BC square. ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हो गई और रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन यहाँ हमें AC और BC दोनों इक्वल दिए गए हैं और रिजल्ट में हमें AC ही लाना है, तो हम यहाँ पर AC स्क्वायर तो ठीक है, BC की जगह AC ही लिख देते हैं। वाई? सिंस BC इज इक्वल टू AC, ये अभी हमने यहाँ पर लिखा था, तो BC की जगह AC लिख दिया। और अब ये क्या हो गया? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है ये, सो 2 टाइम्स AC स्क्वायर, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर, एंड दिस वी हैड टू प्रूव। हेंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने देखा कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग हो रही है, जो रिजल्ट लाना है तो हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। पहले हमने यूज़ की ये इन्फॉर्मेशन कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी दो साइड्स आइडेंटिफाई की हमने जो इक्वल होंगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो इक्वल नहीं हो सकता, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। फिर क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से ये रिजल्ट यूज़ करते हुए हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 5। ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC. If AB square is equal to 2AC square, prove that ABC is a right triangle. अब ये क्वेश्चन 4 का रिवर्स हो गया। यहाँ पर हमें दिया गया है कि AC और BC इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
और ये रिज़ल्ट जो हमने पहले प्रूव किया था वो अब हमें दिया गया है, और हमें प्रूव क्या करना है कि ABC एक राइट ट्राइंगल है। अब यहाँ पर अप्लाई होगी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कोई भी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कब होता है? जब उसका जो हाइपोटेन्यूस है, या कह लीजिए लॉन्गेस्ट साइड है, उसका स्क्वायर इक्वल हो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। जब ये रिलेशनशिप होती है साइड्स के बीच में, तब वो एक राइट ट्राइंगल होता है। तो यहाँ हम इसको यूज़ करेंगे, ये जो रिलेशनशिप दी गई है और ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनको यूज़ करते हुए ऐसी एक रिलेशनशिप बनाएंगे और फिर हम उसको राइट ट्राइंगल प्रूव करेंगे। पहले लिखते हैं क्या दिया गया है, क्या प्रूव करना है। गिवन, two things have been given. First, ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC, and then we have been given AB square equal to 2AC square. ये फिगर बन गया। हमें प्रूव करना है ABC एक राइट ट्राइंगल है। अभी हमें ये नहीं पता है कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं, हमें प्रूव करना है। We start the proof. Now here AB square is equal to 2 times AC square. ये given है। So AB square can be written as AC square plus AC square. हमने 2 times AC square को इस तरह से split कर दिया है। अब this can be written as AB square equal to AC square plus, अब इस AC की जगह हम लिख सकते हैं BC, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। यहाँ हम लिख देंगे BC square. Since given AC is equal to BC, ये given है, इसलिए यहाँ पर हमने AC स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर लिख दिया। और ये तो वही रिलेशनशिप आ गई। ये जो एक साइड है ट्राइंगल की AB, इसका स्क्वायर इक्वल आ रहा है रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के, और ये कंडीशन है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की। जहाँ पर साइड्स के बीच में ऐसी रिलेशनशिप आ जाए अगर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट साइड है AB, इसका ऑपोजिट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सो दिस इम्प्लाइज AB के ऑपोजिट जो एंगल है वो एंगल C है, वो क्या हो गया 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। गेटिंग इट? और क्योंकि अब ये एंगल 90 डिग्री है, वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। एंड सो दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप आप ये समझते हैं कि राइट ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। विद दिस वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पर AC और BC इक्वल दिए गए थे, ये रिलेशनशिप दी गई थी। यहाँ पर हमने इसको स्प्लिट किया, AC की जगह BC लिखा, और फिर हमें साइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप मिली उससे एंगल C 90 डिग्री आ गया, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। So I hope all the 5 questions are very much clear to you. You have understood them very well. Next we will take up other questions. Okay, bye for now. Practice these questions well. That's all.